Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, RBI monetary policy decisions were announced today. So, what are these decisions? First is cut in repo rate. So, now new repo rate is 5.5%, and it is a, you can say, very aggressive cut as far as interest rates are concerned. So, new repo rate is 5.5%. Reverse repo continues to be 3.35%. MSF rate is 5.75%, bank rate is 5.75%, SDF is 5.25%. SLR continues to be 18%, but CRR, that is present 4%, will be cut to 3% in tranches, and first cut will happen from September 2025. Another important part of this monetary policy is stance is changed from neutral to neutral from accommodative. So earlier stance was accommodative, now it is neutral. That means the observation of RBI is that now liquidity is manageable by the system itself. So no further accommodations are required. Another important observation of RBI is with aggressive rate cut of 100 basis point, that is 1%, now there is no further scope of monetary policy to support the growth. That means now entire growth shifts to government policies. Whatever RBI could do to support the growth, that means reduction of interest rates, they have done with, that is what they see. Another concern that they have shown is towards income. They say that incomes are to be closely watched, how income rises in the hands of citizen, because income supports the growth. As you are aware, credit growth is not picking up, and in one of my videos I observed that my sense is as income is not going up, the demand of goods is not going up, and that may be one reason for lower credit growth. Now here another step towards credit growth is taken by reducing the cost of credit, because once interest rates are reduced and ultimately these cuts are passed on to the consumer by way of fall in interest rates on loans. How quickly this transmission happens, that is to be seen. But if this is transmitted, naturally low cost in credit makes credit more affordable, and there is always possibility that more credit demand may come. So that is to be seen. RBI has done its, you can say, task. They say inflation is under control. So the reason for rate cut is now inflation has come within the comfort zone of 4% plus minus 2%. That means now it is below 4%. So it is a comfortable zone. Now how this will transmit into the real economy and how economic growth will happen, only time will tell. Right now, the RBI has said the pressure on rupee will continue. That means the dollar prices may continue to rise and rupee may continue to remain weak in the coming days. So this is what is contained in the monetary policy. We have discussed few points, and if we get more points I will discuss with you in coming days. God bless you all. आज आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आरबीआई ने किया कि जो रेपो रेट है वो ड्रास्टिकली 50 बेसिस पॉइंट से गिरा दिया, और अब नया रेपो रेट हो गया 5.5%। रिवर्स रेपो 3.35% ही है। MSF रेट हो गया 5.75%, बैंक रेट हो गया 5.75% और SDF हो गया 5.25%।
अब इसके अंदर जो SLR है अभी भी 18% है, मगर CRR के अंदर कटौती की है RBI ने, और जो आने वाले दिनों में लागू होगी ये 4% से 3% हो जाएगी, और ये ट्रेंचेस में होगी, और पहला कट सितंबर 25 में होगा। इसकी डिटेल हम अलग से डिस्कस करेंगे। CRR कट का बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये फंड्स जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता ये रिलीज़ हो जाएंगे, और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बैंकिंग के ऊपर, और उनको इंटरेस्ट कट करने में आसानी भी होती है अगर CRR कट होता है। मगर अभी ये इमीडिएट नहीं है, ये सितंबर से लागू होगा। मींस अभी हमें 3 महीने और वेट करना होगा CRR कट का इफेक्ट आने में बैलेंस शीट के अंदर। सबसे बड़ी जो है स्टांस में चेंज कर दिया इस बार। जो स्टांस एकोमोडेटिव था उसको न्यूट्रल कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अब RBI को ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास लिक्विडिटी सफिशेंट है कि वो अपने आप मैनेज कर सके, उसको फर्दर एकोमोडेशन की आवश्यकता नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि पहले डिफिसिट चल रहा था। अब लिक्विडिटी सरप्लस चल रही है कुछ समय से, और उसका रीज़न ही ये है कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत लो है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ भी कम है, मगर क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है तो जो अमाउंट आ रहा है डिपॉजिट की शेप में वो सरप्लस ही होता चला जा रहा है। और पिछले दिनों में काफ़ी OMO करके RBI ने लिक्विडिटी भी एक परमानेंट नेचर की बैंकिंग सिस्टम को दी थी। वो भी एक कारण है कि अब बैंकिंग सिस्टम एक लिक्विड सरप्लस चल रहा है, और जब तक ये चल रहा है तो नेचुरली उसको किसी RBI के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो रेपो रेट का रिडक्शन है उसका अभी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि बैंक अभी बारो कर ही नहीं रहे। अभी तो रिजर्व बैंक को सरप्लस पार्क कर रहे हैं जिस पे उनको लोअर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसका इफेक्ट पॉजिटिव होने की बजाय इमीडिएट जो सरप्लस फंड्स हैं उस पर कम इनकम की शेप में नज़र आएगा। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे डिपॉजिट के रेट घटाते जाएंगे बैंक्स, तो वहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन होती जाएगी, और इसीलिए जो ट्रांसमिशन ऑफ दिस रेट है लोन की EMI में वो ग्रेजुअल होगा। कोई भी बैंक इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि अभी उनको इससे कोई बचत नहीं हुई है। क्योंकि जो रेपो का कट है वो एक तरह से डायरेक्शनल कट है, पर क्योंकि अभी वो बारो नहीं कर रहे तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं घटेगी इमीडिएट। कॉस्ट ऑफ फंड्स तब घटनी शुरू होगी जब वो कम इंटरेस्ट रेट दे के भी डिपॉजिट को मोबिलाइज कर पाएंगे, और क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ कम है इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक एग्रेसिवली अभी डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को कट करने का रिस्क लेगा। वो धीरे धीरे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसी तरह धीरे धीरे लोन के रेट्स में भी कटौती करेंगे। बट सिग्नल है कि यहाँ से इंटरेस्ट कट स्टार्ट होगा, ये एक सिग्नल है। मगर यहाँ पर एक कैवेट भी है। RBI ने ये कहा है कि जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। 100 बेसिस पॉइंट कट कर सकते थे, 100 बेसिस पॉइंट कट कर दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी में स्कोप नहीं बचा है। मीन्स फुल्ली प्लेड है RBI। अब सारा का सारा ऑनर्स है गवर्नमेंट के ऊपर कि किस तरीके से बाकी काम करके हम ग्रोथ को पिकअप करा पाते हैं, इनकम लेवल्स को बढ़ा पाते हैं। और इनकम पे नज़र बनाए रखने के लिए RBI ने अपनी पॉलिसी में कहा है। मीन्स अभी भी लोगों के हाथ में जो इनकम जनरेशन है वो एक कंसर्न है, और उस पर RBI ने कहा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इनकम आएगी तभी गुड्स की डिमांड आएगी। अब जब गुड्स की डिमांड आएगी तभी क्रेडिट ग्रोथ होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को भी तभी पैसा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और कंज्यूमर को भी तभी पैसा चाहिए कोई चीज़ उधार लेने के लिए, अगर उसके पास आमदनी है जहाँ से उसको रीपे करना है। अगर आमदनी नहीं है तो आप डिसीजन पोस्टपोन करते हैं कोई भी गुड्स को परचेज करने की। तो इसके ऊपर और बड़ी समीक्षा हम आने वाले दिनों में करेंगे जैसे जैसे और क्लैरिटी हमें मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।